Hello everyone, this side Mayank Jhunjhunwala from IIT Kanpur. So today I will discuss definite integration in this session again from mathematics. So let's start. So basically, definite integration is is the integration only, but it is integration under limits. Like that is in the for indefinite integration, we were just integrating a function, and after integrating it, we were getting some answer with some constant. But in case of definite integration, we will not get the constant value because we are integrating it under some limits. So we know our boundaries, and in that boundaries only we will integrate the function. So this is the integration symbol. A is lower limit, B is upper limit, fx is the integrand, dx is integrating agent. So integral a to b fx dx is called the definite integral of fx with respect to dx. Okay. फिर अब ये how is definite integral as a limit of sum? So basically, let's say this is your curve. Let's say this is your curve, and you have to integrate it from, let's say, here to here. So how you will integrate it? For integrating it, you will take rectangular boxes like this, then like this, and so on. Basically, these type of rectangular boxes you will compute these areas, and then you will add. So but you know that for rectangle you need only this much, so this much is extra in each case. Here also this much is extra, here also this much is extra, and here also this much is extra. So you have to remove this. So how can you do this? For this you have to compress this. Like, if I'm increasing it, to remove this area, you have to shorten the thickness of this rectangle, so that, let's say, this is the new rectangle which I am taking. So basically what I am saying is I will take the breadth of this rectangle to be very small, to amount of dx, so that this extra length can be neglected. So in this case, let's say this is my straight line, and only this much is my diagonal line, so only this much extra area is coming. So I will try to make it very infinitesimally small, so that this area will not uh, this area will not be neglected in my final answer. So just try to make this strip of rectangle too small, too thin, so that this extra area would not be reflected in your answer. So just I will take this length, which would be, let's say, y, into this breadth, which I am saying to be equal to dx. So you have to integrate y dx under given limits, let's say from a equal to x naught to b equal to xn. So a to b, you will integrate y dx, and you will get the area under the curve. So in this way, this is a limit of sum. The definite integral of any function can be expressed either as a limit of sum or as an antiderivative function f for the interval a to b. Then the definite integral of the function is the difference of the values between a and b. Okay. So this was the case for limit of sum. Coming on to properties of definite integral now. So basically, properties are simple. Let's say here is integral a to b fx dx, and you want to change the variable. So you can simply change it from x to t, because let's say some constant is also there and the variables are matching. So you can change the variable from x to t simply. And if you change the limits, that is from a to b, if you change it to b to a, then a minus sign would be, a minus sign would come. So integral a to b fx dx is equal to negative of integral b to a fx dx. Okay. Then integral a to a fx dx is simply 0, because let's say this is your curve, and you are integrating it from this point to this point only. So there is no area under the curve. So it is 0. So integral under the same limits is equal to 0. If we will change the limits, that is, if we will reverse the limits from a to b, from a to b to b to a, then a negative sign would be added. And this is these are the three important properties. This is also important. What is this property implying? Let's say this is your curve, and you want to integrate this curve from point number A to point number B. So instead of integrating it directly from A to B,
you can take a stop at some point between these 2 points, let's say at some point C, and you can integrate the curve from A to C and then from C to B, and you can add both of these things. Then you will get your final answer. But one more thing, this C need not to be in between these two A and B. Like C can be outside also. If you will integrate from A to C and then from C to B, then also you will get the right answer, even if the C is outside A, it's outside the AB boundary. Why? Because this much area would be added in one case, this much area would be added in one case and would be subtracted in the other case. So this much area would become zero net. So that's why C can be outside the interval of A and B though, and it can be inside also. So taking that case, we can say that my integral from A to B fx dx, integral from A to B fx dx is equal to integral from A to C fx dx plus integral from C to B fx dx. ठीक है, तो बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि C need not to be between A and B. C need not to be between A and B. ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी फोर्थ प्रॉपर्टी. मूविंग ऑन टू फिफ्थ वन. ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. बोथ द इंटीग्रल विल गिव मी द सेम आंसर. सो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको इस फॉर्म में दिया रहेगा तो आप इस फॉर्म में चेंज करके उसको सॉल्व कर सकते हो. बेसिकली दिस इज फॉर जस्ट फॉर सॉल्विंग, कि अगर आपको कभी इंटीग्रल दिया हो और आपको उसकी लिमिट्स ऐसे दी, उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको चेंज करना हो, तो आप लिमिट्स की मदद से उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको भी ध्यान रखना. फिर जीरो टू एफ एक्स डी एक्स, ये तो वही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे एक जगह जीरो है तो एक ही जगह जीरो डालोगे तो यू विल गेट ए माइनस एक्स ओनली. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, इनको ध्यान रखना. दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल. ठीक है. Moving on to definite integral by parts. This is also an important sub-part of definite integration, which is this one is same 0 to 2a fx dx. इसको आप ऐसे break कर सकते हो. कैसे? मतलब आप basically limits को आप कर दोगे 0 to fx dx plus 0 to a and f of 2a minus x dx. One would be fx dx, another would be f of 2a minus x dx. तो इसको ध्यान रखना. और बाकी फिर आप इसको चाहे ऐसे में break कर सकते हो 2 times 0 to a fx dx, अगर आपका f of 2a माइनस एक्स एक्स एफ एक्स के बराबर है. मतलब ये तो सिंपल है ना, अगर आपका ये दोनों चीज बराबर है और अगर आप इस इंटीग्रल को इन दोनों के समेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हो and then you are seeing that these two are equal, then you can simply replace it by 2 and then you can write this thing. So this is also one of the formulas. F of x dx from 0 to 2a is 0 to a f x dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होगा तो ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि दिस थिंग वुड बी पॉजिटिव एंड दिस थिंग वुड बी नेगेटिव एंड बोथ आर इक्वल, सो entirely it will count to zero. And then this is of no use and this is also of no use as such. Sorry, I thought it is something like a power a, but it is on the limits only. So integration from minus a to a fx dx, this is actually very important property. I actually thought it's something else. It is not some. It is not like this. It is like minus a written here and a written here. So minus a to a fx dx is 2 times 0 to a fx dx if my function is even. इस चीज को हमेशा ध्यान रखना. ये वाली प्रॉपर्टी बहुत यूज आती है बिकॉज दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. अगर मेरा फंक्शन इवन फंक्शन है तो इफ माई फंक्शन इज इवन, इसको मैं लिख भी देता हूँ. If fx is an even function, if fx is an even function, अगर मेरा fx even function है, then I can say that integral from minus a to a fx dx is equal to 2 times 0 to a fx dx. सिंपल. ठीक है, और अगर ये चीज ऑड होगा तो क्या होगा? ऑड के केस में ये चीज जीरो के बराबर हो जाएगी. ठीक है, so this is for odd function and this is for even. Cool. Okay, moving on to examples. Let's say this is the very simple example just to illustrate to you about definite integration.
You are integrating function x square dx. You are integrating function x square dx from 2 to 3. तो आपको पता है x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x क्यूब बाई 3. सो यू हैव टू बेसिकली इंटीग्रेट x क्यूब बाई 3. Sorry, integrate x square, so it would be x square x cube by 3 from 2 to 3. So just put the limits. You will get what? You will get 3 cube upon 3, 3 cube upon 3 minus 2 cube upon 3. So from here you are getting what? You are getting 9 minus 8 upon 3, which is 19 upon 3. So 19 upon 3 is your final answer. ठीक, आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे. It is saying what? It is saying calculate integral from 0 to pi by 4 sin 2x dx. Again, अपने को पता है जो sin 2x का इंटीग्रल होता है that is minus cos 2x. इंटीग्रेशन के केस में साइन में नेगेटिव आता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना. minus cos 2x and since x is multiplied by some constant, so we will divide it by that constant and then apply the limits from 0 to pi by 4. So this thing would be how much? This thing would be minus cos of 2 times pi by 4 upon 2 minus of cos 0 upon 2. सो यहाँ से क्या मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा 1 upon 2 minus cos pi by 2 upon 2. सो cos pi by 2 0 होता है. मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया? हाफ इज माई फाइनल आंसर. सिंपल. ठीक, कुछ नहीं किया मैंने. पहले तो मैंने sin 2x को इंटीग्रेट किया. sin 2x का इंटीग्रेशन होता है minus cos 2x by 2. सो minus cos 2x by 2 जब मैंने किया, सो आई इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to pi by 4. मैंने यहाँ पे जब डाला pi by 4, सो यहाँ पे मेरे को बेसिकली स्टेप से हाफ फाइनल आंसर मिल गया. ठीक है, आगे चलते हैं. इसमें क्या बोला है? लेट f बी अ पॉजिटिव फंक्शन. मेरे को एक फंक्शन दिया है f एंड दे आर सेइंग दैट इट इज अ पॉजिटिव फंक्शन. then let I1 equal to this thing and I2 equal to this thing. Then I have to find I1 by I2. This is a very nice question. अब इसमें कैसे करेंगे अपन लोग उसको देखना. पहले तो मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो बता रहा हूँ. एक प्रॉपर्टी होती है ना, इंटीग्रल फ्रॉम एफ, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, दिस थिंग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे यूज करूंगा. सो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस के टू के एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स. मैं यहाँ पे क्या करूंगा? ए प्लस बी. सो ए प्लस बी वुड बी 1 माइनस के प्लस के माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ सेम थिंग, और यहाँ पे भी सेम थिंग. बेसिकली मैंने हर जगह एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया? आई हैव रिप्लेस्ड एक्स विथ 1 माइनस के प्लस के माइनस एक्स. ठीक है, तो वहां से मुझको ये चीज मिली. ठीक है, वहां से मुझे ये चीज मिली. अब बस सिंपल है, अब मैं इसको अलग अलग कर लूंगा. एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स डी एक्स, वन एक इंटीग्रेशन में माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स दूसरे ब्रैकेट में. सो यहाँ से मुझको दो ब्रैकेट मिले. सो दिस इज माई आई टू विच इज गिवन टू मी एंड दिस इज माई आई वन. सो बेसिकली मैंने आई वन को सॉल्व किया एंड आई वन को सॉल्व करके मेरे को मिला आई वन इज इक्वल टू आई टू माइनस आई वन. यहाँ से मेरे को सिंपली मिल गया ना. बेसिकली रेपिटेशन ऑफ इंटीग्रल टाइप की चीज है. I1 इज इक्वल टू I2 माइनस I1 मुझे यहाँ से मिल गया. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से हो गया 2I1 इज इक्वल टू I2. यहाँ से मेरे को सिंपली मिल गया I1 बाई I2 इज इक्वल टू हाफ. I1 बाई I2 इज इक्वल टू हाफ. दिस इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, सो I1 बाई I2 इक्वल टू हाफ इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, इसमें यार जो प्रॉपर्टी यूज करिए, अगर आपने कोई यार प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करेगी देन इट वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और ये प्रॉपर्टी बेसिकली कभी यूज आती है जब आपके थ्रू सिमेट्री बन रही हो. जैसे कि यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है ना, जब आपने दोनों को ऐड करो तो आपको बेसिकली वन ही मिल रहा है.
तो यहाँ से भी 1 - x है, तो बेसिकली ये बन जाएगा 1 - x, ये बन जाएगा x। तो वापस आपको वही वाला फॉर्म मिल रहा है, बस यहाँ पे x की जगह 1 - x मिल रहा है। यहाँ पे 1 - x मिलने से क्या हो रहा है, आपका I1 I2 वापस बन जा रहा है, तो वहां से फिर आप I1/I2 निकाल सकते हो बेसिकली। सो ये वाली प्रॉपर्टी सिमेट्री में काम आती है मोस्ट प्रोबेबली, बट आपको क्लिक करना चाहिए कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, अदरवाइज इट वुड बी डिफिकल्ट टास्क टू सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे 1 - k था a, 1 - k was my a, k was my b, and this is -x only. Cool. आगे चलते हैं। Let a b c be non-zero real numbers such that integral from 0 to 1 plus cos power 8x into ax square plus bx plus c dx is this thing। तो मेरे को ax square plus bx plus c, मेरे को पहले यहाँ से a b c की वैल्यू निकालनी है, and then I have to look for the correct option using quadratic equation concepts। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करूंगा मैं? पहले तो मेरे को ये चीज दी हुई है, और मेरे को they are saying f1 equal to f2. This is not given to me in the question. It might be given, but they have not mentioned it. Mm, okay, let it be. So basically मैंने रोलिस थ्योरम लगाई x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 के बीच में। तो मेरे को पता है बाय रोलिस थ्योरम अगर f(1) और f(2) बराबर है, तो मेरे को k इक्वल टू 1, 2 के बीच में एक जीरो मिलेगा f डैश x का, क्योंकि मेरे को पता है ना कि लेट्स से मेरा कोई फंक्शन है जिसमें मेरा f(1) और f(2) बराबर है, लेट्स दिस पॉइंट। तो मेरे को पता है वो एक बार तो टर्न करेगा ही, तो किसी एक ना एक पॉइंट पे 1 और 2 के बीच में कोई ना एक मेरे को ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे मेरा f डैश x जीरो हो जाएगा। जहाँ पे मेरा एफ डैश जीरो होगा, ऐसा एक पॉइंट जरूर होगा बाय रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो एफ डैश के जीरो होना चाहिए। तो मैंने एफ डैश के निकाला, कैसे निकाला? यहाँ पे मैंने इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट किया, और इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे होता है? लिमिट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, यहाँ पे वैल्यू डाल दो 1 प्लस कॉस ऑफ 8 पावर एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही होगा, तो जीरो से कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जीरो ही रहेगा बेसिकली। तो ये आया मेरा एफ डैश एक्स। अब मेरे को एफ डैश के को जीरो करना है, वे के लाइज बिटवीन 1 and 2। सो मैंने यहाँ पे एक्स के डाल के उसको जीरो किया बेसिकली। तो वहां से मेरे को इस टाइप की इक्वेशन मिली, क्योंकि ये चीज कभी जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि कॉस पावर 8 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, पावर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव ही आएगा आंसर, और मैं इसको 1 में ऐड कर रहा हूँ। सो दिस थिंग कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये चीज कभी जीरो हो नहीं सकती। बचा क्या? बचा इतना पोर्शन ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी, दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे को इक्वेशन मिली। अब मेरे को पता है कि यहाँ पे जो के है वो 1 और 2 के बीच में लाई करता है, एंड के इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन बेसिकली। ठीक है, सो एटलीस्ट वन रूट लाइज इन बिटवीन 1 and 2। सो बी पार्ट मेरा राइट ऑप्शन हो गया, क्योंकि मेरे को यहाँ से दिख रहा है कि जो मेरा के है, ये क्या है, के इज लाइंग बिटवीन 1 and 2। के किसके बीच में लाई कर रहा है? के इज लाइंग बिटवीन 1 and 2। ठीक है, तो बेसिकली ये जो इक्वेशन है, इसको मैं स्टेप्स लिख सकता हूँ ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको मैं स्टेप्स लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे बेसिकली एक्स को कैसे रिप्लेस कर दिया बेसिकली, सो एक्स इक्वल टू के मेरा रूट है, और के 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। सो मेरे को इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में बताना था, तो इस इक्वेशन का एक रूट इज लाइंग बिटवीन 1 and 2। सो बी पार्ट इज माई राइट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको रोल्स थ्योरम लगानी थी। रोल्स थ्योरम लगा के आपको ये कंसीडर करना था कि अगर f(1) और f(2) बराबर है, तो 1 और 2 के बीच में कम से कम इस फंक्शन का एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाना चाहिए। तो मैंने एफ डैश के को जीरो किया, मैंने वहाँ पे के पुट किया, तो 1 प्लस कॉस पावर 8 के, दिस थिंग, ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक तो 1 ऐड कर रहा हूँ, और कॉस की पावर में समथिंग पॉजिटिव है, वो चीज कभी जीरो हो नहीं सकता बेसिकली। सो फर्स्ट ब्रैकेट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। सो ए के स्क्वायर प्लस बी के प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। वहां से मैंने एक्स को के से रिप्लेस किया था, तो मेरे को पता है कि इज लाइंग बिटवीन 1 and 2 बिकॉज आई हैव अप्लाइड रोल्स थ्योरम बिटवीन 1 and 2। So I can say that the
quadratic equation ax square plus bx plus c has at least one root in 1 comma 2. ठीक है, so b is my right answer. अब आगे चलते हैं. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल व्हाट. सबसे पहले तो आपको लिखना चाहिए कि यहाँ से कि ये चीज माइनस ए और ए टाइप की है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि माइनस पाई और पाई है विच आर सेम. सो यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी यूज आ सकती है, तो इसको ध्यान रखना. अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को दिया हुआ है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू पाई, माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. So this would be integration from minus a to a cos square x upon 1 plus a power x dx. So यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं x को रिप्लेस करूंगा. मतलब बेसिकली मैं ऐसे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, वो चेक कर रहा हूँ. जब मैं यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स डाल रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग cos स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस a पावर माइनस एक्स इंटू माइनस डी एक्स. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा, ये भी मेरा i के बराबर है और ये भी मेरा i के बराबर है. आई हैव जस्ट रिप्लेस्ड x विथ माइनस एक्स. सो यहाँ से जब मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, सो मेरे को ये मिल गया, जब मैं यहाँ पे डालूंगा 1 प्लस. ठीक है, तो फिर यहाँ से मैं बेसिकली एक इंटीग्रल मेरा ये हो गया आई, और ये मेरे इसके बराबर है. ठीक है, अब मैंने इसको दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ से मुझको मिला 1 अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए पावर माइनस एक्स. अब मेरे को पता है यहाँ से मेरे को मिल रहा है दिस थिंग, और ये चीज जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, तब बेसिकली नीचे डिनोमिनेटर में तो ये आएगा, न्यूमरेटर में भी ये आ जाएगा. क्यों? क्योंकि मेरा 1 प्लस ए पावर माइनस एक्स ऐसे है ना ये. तो बेसिकली यहाँ से क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स. ठीक है, सो 1 प्लस ए पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ए पावर एक्स, वो चीज हो जाएगी 1. सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर आई टू आई इज इक्वल टू माइनस पाई टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. फ्रॉम देयर 2 and 2 विल कैंसल, एंड आई विल गेट बेसिकली ये चीज हो गई. क्या है यहाँ पे आया माइनस पाई टू पाई cos square x dx, and I know that cos square x is my even function, because when I will replace x by minus x, when I will replace x by minus x, then I will again get cos square x only, because cos is an even function. So from here I will get cos square x only, cos square x. So basically even function के केस में क्या होता है, even function के केस में this thing is equal to 2 times integral from 0 to pi cos square x dx. ठीक है, तो ये चीज हो गई. अभी इस चीज के बाद सिंपल है, फिर मेरे को ये चीज मिल गई यहाँ से. अब मैं cos पर x को खोल लूंगा, फ्रॉम cos पर x कहाँ से खोलूंगा, यूजिंग द फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos square x minus 1. 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, इससे मैं इसको खोल लूंगा। तो फिर यहाँ से मेरे को मिल गया वन प्लस कॉस टू एक्स, वन प्लस, हाँ भी टू, क्योंकि मैंने यहाँ पे टू लिया था ना एक्स्ट्रा, तो वहां से ये भी चीज मेरे को मिल गई। और वन का मेरे को पता है इंटीग्रेशन होता है एक्स, और कॉस टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स बाई टू। देन आई विल अप्लाई द लिमिट फ्रॉम जीरो टू पाई, एंड ऑन अप्लाइंग लिमिट्स आई विल गेट टू वाई इक्वल टू पाई, बिकॉज यहाँ से मुझे मिलेगा पाई माइनस जीरो, पाई माइनस जीरो प्लस साइन पाई जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो होता है, तो यहाँ से जीरो मिलेगा। तो टू वाई इज इक्वल टू पाई, उसमें इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई टू। बेसिकली यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जैसे मैंने बताया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी लग रही है। और ये वाली प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली मेनी टाइम्स आस्क्ड इन जेईई मेंस। ये चीज होता है, दिस थिंग इज इक्वल टू आइदर टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, टू टाइम्स जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, या फिर दिस थिंग इज इक्वल टू, सॉरी, जीरो। ठीक है, ये कब होगा, ये तब होगा जब मेरा एफ एक्स इवन फंक्शन होगा, when my fx is even function, if my fx is even function, and this would be in case of odd function। ठीक, अब आगे चलते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y इक्वल टू mod x minus 1 and y इक्वल टू minus mod x plus 1, ये मैंने आपको बताया। एरिया अंडर द कर्व इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ओनली। सो बेसिकली ये जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको अगर मैं वैसे लिखूं, सो दिस थिंग इज नथिंग बट y इक्वल टू x minus 1। ठीक है, सो मम्मी को पता है, जब मेरे को एरिया पूछा जाए तो मैं एरिया लेता हूँ एक्स एक्सिस से। सो बेसिकली जो मेरा इक्वेशन है वो एक वाई इक्वल टू एक्स माइनस वन वाली, और फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। मतलब मेरे को दो ग्राफ दिए हुए हैं ना, अब देखो इस वाली केस में जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होगा तो मेरे को मिलेगा माइनस एक्स माइनस वन, और इस वाली केस में जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होगा तो मुझे मिलेगा एक्स प्लस वन। तो इस टाइप से मेरे को दो कर्व दिए हुए हैं। तो इसको अगर मैं ऐसे मानूं, अगर मैं ये दो कर्व बनाऊं, तो पहले तो मैं बनाता हूँ वाई इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, ये वाला कर्व पहले मैं बना रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं इस वाले कर्व को कंसिडर कर रहा हूँ। अब इसमें जब मेरा x ग्रेटर देन जीरो होगा, देन आई विल गेट माई y टू बी इक्वल टू x माइनस वन। सो y इक्वल टू x माइनस वन इज नथिंग बट, जब मैं यहाँ पे x को जीरो पुट करूँ तो मेरे को y माइनस वन मिल रहा है। बेसिकली ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, फॉर x ग्रेटर देन जीरो, सॉरी। ठीक है, ये y इक्वल टू x माइनस वन, एंड व्हेन x इज लेस देन जीरो, व्हेन x इज लेस देन जीरो, देन आई विल गेट y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। मतलब स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, बट इट विल पास टू माइनस वन ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो उस केस में ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सो एक लाइन तो ये हो गई मेरे y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन वाली, एंड सेकेंड इज y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन, माइनस मॉड एक्स प्लस वन। अब जब यहाँ पे x ग्रेटर देन जीरो होगा, सो आई विल गेट y टू बी इक्वल टू वन माइनस एक्स। सो वन माइनस एक्स अगेन, एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू वन है, तो बेसिकली यहाँ से कैसे चालू होगा, एंड एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, और यहाँ पे भी वाई इक्वल टू जीरो पे एक्स इक्वल टू वन आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ से पास होगा। तो वो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, और फिर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर वो ऐसे जाएगा। तो बेसिकली मेरे को एरिया कहाँ से कहाँ तक पूछा है, मेरे को बोला एरिया बाउंडेड बाई दीज कर्व्स। तो बेसिकली मेरे को ये वाला एरिया बताना है। अब मेरे को दिख रहा है कि ये चीज एक स्क्वायर है, मतलब मैं सिमेट्री से देख सकता हूँ कि ये नथिंग, दिस थिंग इज नथिंग बट अ स्क्वायर ओनली। तो अगर मैंने एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया, तो मैं बाकी ट्रायंगल का एरिया आराम से निकाल सकता हूँ बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय फोर। ठीक है, बेसिकली मेरे को किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, अब मैं किसी भी एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसको मैं फोर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो फोर इंटू हाफ इंटू, मेरे को पता है कि जो मेरा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है वन कॉमा जीरो, एंड सिमिलरली
दिस पॉइंट इज माई 0,1. सो बेसिकली मेरी हाइट भी 1 है और बेस भी 1 है. सो दिस थिंग इज इक्वल टू 4 इंटू हाफ इंटू 1 into 1. So from there, I'm getting my final answer for the area between these two curves to be equal to 2. So 2 is my final answer. ठीक है. बस इसमें एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि ये चीज जो मेरा पहला वाला कर्व था ये वाला, दिस इज द कर्व फॉर y इक्वल टू mod x minus 1, y इक्वल टू mod x minus 1, और जो ये वाला कर्व है ये किसके लिए है, ये y इक्वल टू माइनस mod x plus 1 के लिए. ठीक है. तो यहाँ से मेरे को मेरा फाइनल आंसर मिल गया एरिया का. सो y इक्वल टू, तो एरिया कितना हो गया 2, सो 2 इज माई राइट आंसर. ठीक है. Let's move on to next question. Question number 5. What is saying is saying if L of Mn is equal to this thing, then the expression for L of Mn in terms of m plus 1 and minus 1. मेरे को कोई फंक्शन दिया हुआ है which has independent variables as m and n, and what they're saying that I have to convert this function into independent variables m plus 1 and n plus 1. ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, पहले तो मैं इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ सिंपली. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा, लेट्स से इसको मैं मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन एंड इसको मैं मानता हूँ सेकंड फंक्शन. Then I am using the Eilert rule. So I will get integration, I will get 1 plus t power n first function as it is into integration of second function, that would be t power n plus 1 upon n plus 1 from 0 to 1 minus 1 plus t power n का differentiation, that would be n times 1 plus t power n minus 1 into this thing as it is. So अब मेरे को दिख रहा है यहाँ से कि ये चीज, इसको तो मैं सीधे से लिख दूंगा 2 power n into 1 upon n plus 1 minus 0. सो यहाँ से तो ये आ जाएगा, माइनस यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से बन गया जो मेरे को चाहिए था, देखो वही बन गया. t को मैं रिप्लेस कर दूंगा 1 plus t से. या फिर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो n अपॉन m प्लस 1 को तो मैं बाहर ले जाऊंगा, n अपॉन m प्लस 1 मेरा बाहर आ जाएगा. ठीक है. और फिर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस टी पावर n माइनस 1 एंड टी पावर m प्लस 1. तो मैंने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे n और m, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया n माइनस 1 और m प्लस 1 में. यही तो मुझे चाहिए था. तो बस, अगर मैं, ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, कौन दोनों एक्सप्रेशन बराबर है, आई हैव चेंज दिस एक्सप्रेशन 0 to 1 t पावर m 1 plus t power n into m plus 1 and minus 1. So this thing is equal to, let me, this thing is equal to L mn, which is equal to 2 power n upon m plus 1 minus n upon m plus 1 into L of m plus 1 and minus 1. ठीक है. So this is the way which I have converted into. ठीक है. Just I have used the Eilert rule, nothing else. Moving on to next question. If for any real number y, greatest integer function of y is the greatest integer less than or equal to y. हाँ मतलब ये सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन बोला है यहाँ पे.
then the value of the integral pi by 2 to 3 pi by 2 GIF of 2 sin x dx is what, मुझसे ये पूछा है। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मेरे को इंटीग्रल के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया जाता है, तो मेरे को वहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ब्रेक करना पड़ता है गिवन लिमिट्स के अंदर। अब मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा? पहली चीज मेरे को पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है वो लाई करेगी -2 से 2 के बीच में, फ्रॉम -2 टू 2। क्यों? क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू लाई करती है फ्रॉम -1 to 1 एंड आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, सो बेसिकली 2 sin x लाई बिटवीन -2 and 2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? क्या तो ये इस रेंज में क्या क्या हो सकती है बेसिकली, इस रेंज में क्या तो ये हो सकती है -2, या फिर हो सकती है -1, या फिर 0, आइदर 1 और 2। ठीक है, सो ये वैल्यूज पॉसिबल है मेरे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, सो अब मेरे को इसको इसी लिमिट्स पे तोड़ना पड़ेगा बेसिकली। ठीक है, सो 2 sin x dx बेसिकली मेरे को तोड़ना है, मेरे को लिमिट्स को तोड़ना है π/2 से 3π/2 इन द मेरे फंक्शन के लिए, मेरे फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, अभी मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे फंक्शन की वैल्यू, मतलब 2 sin x की वैल्यू -2 से -1 के बीच में कहाँ पे होगी। -1 नॉट इंक्लूडेड ऑब्वियसली, क्योंकि -2 से -1 के बीच में मेरा जो इसका आंसर आएगा वो आ जाएगा -2। सो अगर मेरे को इसको -2 रखना है, तो बेसिकली sin x की वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी -1 से 0 के बीच में। साइन एक्स की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी -1 से -12 के बीच में। साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए? -1 से -12 के बीच में। सो साइन एक्स की वैल्यू -1 से -12 के बीच में कहाँ पे होती है? लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, जहाँ पे ये होता है मेरा π/2, दिस इज माई पाई, दिस इज माई 3π/2। ठीक है, मेरे को π/2 से 3π/2 के बीच में बात करनी है। तो अब मेरे को इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मेरे को पता है कि π/2 से लेके पाई तक मेरी साइन एक्स की वैल्यू लाई करेगी 1 से लेके 0 तक। लेकिन 1 से लेके 0 तक तो मेरी वैल्यू फिर ये 2 से 0 पहुंच जाएगी, लेकिन मेरे को सिर्फ अभी 2 के लिए चेक करना है। सो बेसिकली मेरे को जाना पड़ेगा 1 से लेके हाफ तक। सो हाफ कहाँ पे होता है? हाफ लाई करता है इन दोनों के बीच में। बीच में तो नहीं, मतलब यहाँ पे होता है 30 डिग्रीज पे, तो यहाँ पे होगा 150 डिग्रीज पे। सो 150 कितना होता है? 150 होता है 5π/6, बिकॉज π/6 इज 30, 30 × 5 इज 150। सो π/2 से 5π/6 के बीच में मेरी जो 2 sin x dx की वैल्यू होगी वो होगी 1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है। बेसिकली वो 2 नहीं जा रहा ना, मैं उसको 2 से 1 के बीच में आ रही वैल्यूज, तो हो जाएगी 1 dx। सिमिलरली 5π/6 से पाई के बीच में, मतलब फ्रॉम हेयर टू हेयर, मेरे ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन की वैल्यू होगी 0। फ्रॉम पाई टू 7π/6, मतलब यहाँ तक इसकी वैल्यू होगी -1। एंड फ्रॉम 7π/6 टू 3π/2 मेरे ग्रेटेस्ट नीचे फंक्शन की वैल्यू होगी -2। ठीक है, सो ये मेरे 4 इंटीग्रल आ रहे हैं बेसिकली यहाँ से। ये चीज हो जाएगा 5π/6 -π/2, ये वाली चीज तो 0 ही रह जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी पाई -7π/6, एंड दिस वुड बी -2 एज इट इज 3π/2 -7π/6। अब बस इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से आप लोगे तो फिर ये हो जाएगा 3π/6। सो 5π -3π वुड बी 2π/6 minus 7π/6 minus 6π/6, so it would be π/6, and 3 pi basically यहाँ पे हो जाएगा 9π/6 minus 7π/6, that would be 2π/6, 2 into 2 would be 4π/6, so 2 pi minus 4 pi minus pi, so I will get -3π/6, so -π/2 is my final answer to this problem। ठीक है, बस ये हमेशा रखना कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया रहे इंटीग्रल के अंदर, देन यू हैव टू ब्रेक दिस फंक्शन इन द प्रॉपर लिमिट्स, क्योंकि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते जब तक आप उसको ब्रेक नहीं करोगे। तो मैंने इसको ब्रेक किया, मेरे को पता है इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगी, तो GIF की वैल्यू लाई करेगी -2 होगा ऑब्वियसली। -2 -1 0 और 1 के बीच में 2 नहीं आएगा, सॉरी, क्योंकि 1 से 2 के बीच में GIF की वैल्यू 1 होती है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर मेरे को वाली लिमिट्स ढूंढनी पड़ेगी। साइन एक्स की वैल्यू 2 sin x की वैल्यू 2 से 1 के बीच में मेरे को चाहिए, तो बेसिकली साइन एक्स की वैल्यू मेरे को चाहिए 1 से लेके हाफ के बीच में। सो 1 से लेके हाफ के बीच में जो मेरी वैल्यूज होती है वो होती है π/2 से लेके 5π/6 तक, देन फ्रॉम 5π/6 टू पाई, देन फ्रॉम पाई टू 7π/6,
and from 7 pi/6 to 3 pi/2. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया and from that I got my final answer to be equal to -pi/2. ठीक है, moving ahead, question number 8. If f(x) is equal to a times sine of pi x by 2 plus b, then f dash half is equal to √2 and this thing is 2a by pi, then find the constants a and b respectively. मेरे को कुछ दिया हुआ है और मेरे को वहां से a और b पूछा है. ठीक है, बेसिकली मेरे को f(x) की वैल्यू दी गई है, तो मेरे को f dash half की वैल्यू दी गई है और मेरे को इसकी वैल्यू दी गई है. तो मैं यहाँ पे f(x) की वैल्यू पुट कर देता हूँ. सो f(x) की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी. तो सिंपल क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपको इंटीग्रेट करना है. तो मेरे को पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x, सो -cos πx/2, और जो x में मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में चला जाता है, सो डिवाइड बाई 2/पाई. सो वही मैंने यहाँ पे किया, डिवाइड बाई π/2. सो यहाँ से -2/पाई इंटू ए और प्लस bx, और इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 1. यहाँ से मैं जब डालूंगा cos π/2 0 होता है, तो वो चीज़ तो कैंसिल हो जाएगी, तो cos 0 1 होता है, तो वहाँ से आ जाएगा 2a/पाई, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा b-0. सो b प्लस 2a/पाई इज इक्वल टू 2a/पाई. सो b इक्वल टू 0 आ गया, सबसे सिंपल. और फिर मेरे को दिया हुआ है f डैश हाफ की वैल्यू, तो मैं f डैश x निकाल लूंगा. f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, सो हो जाएगा cos πx/2 एंड π/2 बाहर जाएगा. सो π/2 इंटू a टाइम्स cos ऑफ πx/2. ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन. और मेरे को बोला गया है कि जब मैं x की वैल्यू हाफ डालूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन √2 आ रहा है. सो हाफ डालने पे ये बन जाएगा π/4. π/4 होता है 1/√2. सो ये चीज़ √2 के बराबर है. सो यहाँ से मेरे को a मिल जाएगा 4/पाई के बराबर. तो मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी, तो मैंने सिंपली निकाल ली. कुछ नहीं किया, एक बार मैंने इंटीग्रेट किया फंक्शन को, एक बार मैंने डिफ्रेंशिएट किया, मतलब d/dx की ऑब्वियस सी बात है. फिर मैंने d/dx में मैंने पुट किया x इक्वल टू हाफ. वहां से मेरे को जो चीज़ मिली उसको मैंने, जो मेरे को दिया हुआ है, √2 से कंपेयर किया. फ्रॉम देयर आई गॉट द वैल्यू ऑफ a, एंड फ्रॉम इंटीग्रेटिंग आई गॉट द वैल्यू ऑफ b टू बी इक्वल टू 0. मेरे से वैल्यू ऑफ a एंड b पूछी गई थी. a इज इक्वल टू 4/पाई एंड b इज इक्वल टू 0 इज माई फाइनल आंसर. ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. They are saying to evaluate from 0 to pi integration of sine of n plus 1/2x upon sin x by 2 dx, where my n belongs to natural number. ठीक है, तो ये वापस वैसे ही होगा. इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो उसमें 2 sin x/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ. तो वहाँ से क्या होगा, आई विल गेट हाफ प्लस cos x प्लस cos 2x प्लस डैश डैश अप टू cos nx बेसिकली. अभी इसमें क्या करें हम लोग कि जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली यहाँ से तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, sin x/2 बचेगा, बाकी में सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर यहाँ से बन जाएगा 2 sin a cos b. ओके, अच्छा, मैंने इन दोनों के बीच में मैंने लगा दिया वाला फॉर्मूला 2 sin a cos b वाला. तो 2 sin a cos b इज साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी. तो वाला फॉर्मूला लगाया, सिमिलरली मैं आगे लगाता जाऊंगा, तो वहां से मेरे को साइन ऑफ n+1 हाफ एक्स मिल जाएगा. तो मैं साइन ऑफ n+1 हाफ एक्स को इस चीज से रिप्लेस कर सकता हूँ, 2 sin x/2 इंटू 1 प्लस हाफ प्लस cos x प्लस cos 2x प्लस डैश डैश अप टू cos nx. इससे मैंने इस चीज को रिप्लेस कर दिया. सो देन आई विल कैंसिल sin x/2, and after cancelling sin x/2 I will get this thing, uh, integration from 0 to pi half plus cos x plus cos 2x plus dash dash up to cos nx, and from there integration of half dx would be x only, so I will get x from 0 to pi multiplied by half, and this 2 is also there, so this will cancel. So here it would be pi minus 0 divided by 2. So this is pi/2 from here. Similarly, integration of cos x would be minus sin x, the sin x only. So integration of sin x from 0 to pi
Sine pi is also 0 and sine 0 is also 0. So this would convert to 0. Similarly, I will do the other integrations and then I will put the values from pi to 0. I know that sine pi is also 0 and sine 0 is also 0. So all of the brackets will eventually move down to 0 and only 2 pi by 2 would be left. So pi would be my answer. बेसिकली इसमें मेरे को साइन ऑफ n+1 हाफ एक्स को इस चीज में कन्वर्ट करना था तो दिस थिंग you have to think of in the paper, but some idea would be given. But yeah, if you don't know this thing, then this question can't be solved. Then moving on to question number 10. The sine and cosine curves intersect infinitely many times, giving bounded region of equal areas. हाँ मतलब साइन कोसाइन का ग्राफ ऐसा होता है. This is the graph for sine x, and this is the graph for cos x. So there will be region of equal areas like this area and then this area. Then you have to find the area of one such region. So basically you have to find this area. So for that you have to know the intersection points. So you know that firstly it intersects at x equal to pi by 4. And then at x equal to 3 pi by 4. So basically you have to integrate this much area between the limits pi by 4 and 3 pi by 4. So from pi by 4 to 3 pi by 4, and which curve is on the upper side? This is sine x. This is sine x. And this is cos x. So integration of sin x minus cos x dx from pi by 4 to 3 pi by 4. Integration of sin x would be cos x. And for cos it would be sine. So basically cos x minus sin x from pi by 4 to 3 pi by 4. Then put the values of cos 3 pi by 4 and sin 3 pi by 4. Then sin pi by 4 and cos pi by 4. From there, the final answer would be root 2 for this question. So root 2 is my final answer. So area of any such curve between 2 points for sin x and cos x is root 2. So this much area is root 2. Then again this much area is root 2. Then again it will go ahead and again do this thing, this area. So this one again would be root 2. Then again after going ahead, similarly back side also. So again this area would be root 2. So each area would be root 2 only. So how we can calculate this? By using definite integration between pi by 4 and 3 pi by 4. Okay. So I hope you got today's lecture. Okay, thank you.